Hello and welcome you all next session of class 12 chemistry chapter 3 electrochemistry. Today we are going to discuss about Nernst equation. What is Nernst equation? Nernst equation is a equation. It relates the electrode potential with concentration of ions. To understand it more clearly, let us take some example. For an electrode reduction reaction, m raised to the power n plus aqueous plus n electron, it become m solid. This is the general equation for the Nernst equation. So Nernst equation can be written as E cell m raised to the power n plus m equal to E naught m raised to the power n plus m minus RT upon NF ln m upon m raised to the power n positive. Concentration this one and this one. This is the Nernst equation. This is the Nernst equation for what we are talking about. It can also be simplified as, further it can simplified as E m raised to the power n positive m equal to E naught m raised to the power n plus m minus ln is converted in form of log, so it become multiply by 2.303 RT upon NF log concentration of m upon concentration of m raised to the power n plus. As we know, in solid state concentration is 1, thus it can also be expressed as E m raised to the power n plus m equal to E naught m raised to the power n plus m minus 2.303 RT upon NF log 1 by m raised to the power n plus concentration. This become, because concentration of solid is considered as a 1. Here E m raised to the power n plus m electrode potential, E naught m raised to the power n plus m is standard electrode potential, and R equal to universal gas constant. Its value is 8.314 joule per Kelvin per mole. Joule per Kelvin per mole. This is the value of R. And T, temperature in Kelvin.
P temperature in Kelvin, F Faraday constant, its value is 96,500 coulomb per mole, and n number of electron gained. Substituting the value of F in this equation, F, R and T, this equation can be also rewritten as m raised to the power n plus m equal to E naught cell, yani m raised to the power n plus m, minus, after the substituting of value of R and F, we have 0.0591 upon n log 1 upon concentration of m raised to the power n. This is at 298 Kelvin. This equation become Nernst equation. This is the Nernst equation. It can be also rewritten as m raised to the power n plus m E naught m raised to the power n plus 0.0591 upon n log m raised to the power n plus concentration. This is the mathematical terms. The temperature is also remain the same at 298 Kelvin, at we have already mentioned at 298 Kelvin, at 298 Kelvin. This is the temperature at which Nernst equation can be resolved in this form. This is the reduction potential. It means what? If the reduction potential increased with the increase in concentration of ion. So how is the reduction potential increase? If the number of ion is increased, it means reduction potential also increase. And if for the general case, electrochemical reactions, let us consider for a general electrochemical reaction, the reaction is, suppose the reaction is for a general electrochemical reaction, AA, BB, N electron, CC plus DD. Nernst equation can be given as E cell, E naught cell minus RTNF ln C raised to the power C, D raised to the power D, A raised to the power A and B raised to the power B. This is the general Nernst equation. Again, when ln is converted into log, it's also become E cell equal to E naught cell minus 2.303 RT NF log C raised to the power C, D raised to the power D,
a raised to the power a and b raised to the power b. This is the general Nernst equation. After the substitution of value of, when we substitute the value of r and f, this equation again become E cell equal to E naught cell minus 0.0591 upon n log concentration of C पे power C concentration of D पे power D upon concentration of A पे power A and concentration of B raised to power B. This is the general form of Nernst equation. For Daniell cell, Zn solid plus Cu2 plus aqueous, Zn2 plus aqueous Cu solid डेनियल सेल इक्वेशन है जिसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले से जानते हैं। इस इक्वेशन के लिए अगर मुझे नर्स्ट इक्वेशन लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, समझिए इसको और जो है आप अपने इंफॉर्मेशन को पुख्ता कीजिए। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए कि दो जो है जैसे ए बी बी सी सी, अभी इस तरह की बातें हम कर रहे थे, तो उसी तरह से इसके लिए हम अगर लिखना चाहें तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन n, और ये n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लॉस और गेन, 2 हो रहे हैं तो 2 F log। अब देखिए कि चूंकि सॉलिड तो लेते नहीं है हम, कंसंट्रेशन लेते हैं, और कंसंट्रेशन में क्या पढ़ा है आपने कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो क्या हो जाएगा Zn2 प्लस कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस कंसंट्रेशन। समझ में आ गया होगा अब आपको कि नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखना है। तो जो बेसिक है इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, पहला जो है हमें यही लिखना पड़ता है कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू या इस तरह की चीजें लिखें। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब कहते हैं एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम हो जाए, एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ई सेल जो है वो हो जाता है हमारा 0, ई सेल इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log Zn2 प्लस Cu2 प्लस कंसंट्रेशन। ऐसा हो जाएगा नर्स्ट इक्वेशन आपका। अब क्या करते हैं, ई सेल को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 अपॉन 2F RT log Zn2 प्लस कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस कंसंट्रेशन। ये हो जाएगा आपका नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो होता है ये क्या हो जाता है Kc, सिंस एट इक्विलिब्रियम Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा Kc, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगेन इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, रीजनरलाइजेशन कर रहे हैं फिर इक्वेशन का। रीजनरलाइजेशन में क्या हो जाएगा, ई सेल के बदले ई नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन 2F
log Kc। ठीक है जी। और यदि R और T का वैल्यू फिर आप यहां पुट कर देते हैं अगेन, तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन 2 log Kc हो जाएगा। तो यहां से आप जो है log Kc भी निकाल सकते हैं, ई नॉट तो निकाल ही सकते हैं। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, log Kc इक्वल टू n अपॉन 0.0591 ई नॉट सेल, है कि नहीं। क्या हो जाएगा 0.059 और यह हो जाएगा ई नॉट। ये हो जाएगा भाई इक्वेशन जनरलाइजेशन, जो आप सॉल्व करते जाएंगे तो यहां तक पहुंच सकते हैं। अब है कि इस पे बेस्ड सवाल कैसे आते हैं। जब तक आप इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या कोई सेल आपको दे दे उसके लिए नस्ट इक्वेशन लिखने आपको कह दे, जब तक आप वो लिख के नहीं देखेंगे आपको तसल्ली नहीं होगी, और ना ही आप इस कॉन्सेप्ट को जो है गो थ्रू कर पाएंगे विदाउट डूइंग प्रैक्टिस। तो सबसे पहला है, जैसे कि अभी नस्ट इक्वेशन जो हमने आपको बताया है, तो इस पे सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक सवाल करने की कोशिश करेंगे नस्ट इक्वेशन बेस्ड पे, कि कोई एक नॉर्मल सेल देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन एप्लीकेबल होता है तो कैसे होता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलिए हम एक नॉर्मल सा इक्वेशन से शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं इसे समझने के लिए कि नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे। और नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हमें एक छोटी सी चीजें और जाननी चाहिए, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी के साथ इनका रिलेशन कैसा रहा है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अभी तक जो हमने पढ़ा है नस्ट इक्वेशन, जो कैथोड एनोड पढ़ा था अपने, राइट लेफ्ट ई सेल जो होता है, कि उन सब के बारे में, तो उसको थोड़ा सा हम जो है अब रिलेटिव का बना करके काम करना चाह रहे हैं, उसको थोड़ा सा जो है इन जनरल में लाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गिब्स एनर्जी इसमें ऐड करेंगे नस्ट इक्वेशन में, ताकि न्यूमेरिक अप्रोच जो है हम कर पाए इस चैप्टर में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईएमएफ और गिब्स एनर्जी को रिलेट करते हैं, ईएमएफ एंड गिब्स एनर्जी। ठीक है, ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई कर सकें। ईएमएफ एंड गिब्स एनर्जी। ईएमएफ तो आपने पढ़ा ही था कल, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसमें आपने पढ़ा था ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, तो वर्क डन बाय अ रिवर्सिबल गैल्वेनिक सेल। ईएमएफ यहाँ पर जो है हमारा गिब्स एनर्जी क्या है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल जो है एक सेंस है हमारा गिब्स एनर्जी का, क्या है, द वर्क डन बाय अ रिवर्सिबल galvanic cell is equal to decrease in its physical energy। फ्री एनर्जी, यानी मैथमेटिकली अगर आप कहें तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल या ई सेल। पहले तो ई सेल की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम में ऐसा आता है। फिर कहते हैं इफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीशीज इज यूनिटी। तो ये कब आएगा कंडीशन, जब इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या हो जाता है हमारा ई सेल इक्वल टू क्या हो जाता है,
इनोट सेल। तो हम कह सकते हैं देन क्या हो जाएगा आपका डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल टू माइनस एन एफ इनोट सेल। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये हो जाएगा। अब डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन की बात हो रही है तो स्टैंडर्ड अगर आ जाए वी कैन कैलकुलेट, हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब यहाँ स्टैंडर्ड की बात आ रही थी तो ये हो गया, तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी भी क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जो है स्टैंडर्ड डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन है, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीधा सा संबंध निकाल देते हैं हम इसके लिए, डेल्टा जी नोट रिएक्शन इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब यहां पर जो एल एन के है इसको के सी मान लीजिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि हम पिछले इक्वेशन में जो है प्रूव कर चुके थे, क्या कर चुके थे कि जो के सी का वैल्यू है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसके रेशियो के बराबर है। तो हम इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहे, एल एन हटा दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। के सी से क्या आर टी लॉग के सी आ गया है ना। अब इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, जहां चाहे वहां अप्लाई कर सकते हैं। माइनस हटाना हो तो 1/kc लिख देंगे, वो तो मैथमेटिकल टर्म्स है। ठीक है, अब हम करते हैं इस पे एक सवाल। सवाल क्या है देखिए, पहला ही सवाल जो है हमें इससे बहुत सारी चीजें जो है इस क्वेश्चन में हमें वो क्लियर कर देगा। सवाल है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ डैनियल सेल इज प्लस 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन। अब देखिए कि डैनियल सेल की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इस पे प्रैक्टिस भी करना है आपको, बहुत सारे सवाल। अब वहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्वेश्चन ये है कि इनोट सेल इक्वल टू प्लस 1.1 वोल्ट, ये दिया हुआ है आपके सवाल में। ठीक है, अब कह रहा है कि डेल्टा जी नोट इक्वल टू वॉट, और सेल कौन सा है, तो सेल का रिएक्शन दिया हुआ है, कौन सा है भाई, जेड जो जिंक टू जेड सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस एरो Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये है डैनियल सेल की बात कर रहे हैं ये। तो अब इस डैनियल सेल में हमें क्या करना है, और चूंकि आप जानते हो F इक्वल टू क्या होता है 96,500 कूलम पर मूल, ये तो वैल्यू पहले से ही पता है हमें। अब हमें इस इक्वेशन में क्या निकालना है, देखिए सवाल में कह रहा है कि डेल्टा जी नोट ही निकालना है आपको, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्यूशन निकाल देते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल पढ़ा है। अब जो है इस वाले इक्वेशन में एन की वैल्यू तो आपको 2 लग रही है, नजर आ रही है, पक्का स्टैंडर्ड है। डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2 इंटू 96,500 इंटू इनोट सेल क्या है भाई 1.1 वोल्ट। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, आंसर के क्लोज आ जाएंगे, वेरी क्लोज। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखिए तो क्या हो जाता है, 96 और 1.1 सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप,
तो ये वैल्यू हो जाता है -212.300 जूल मोल इनवर्स, या नॉर्मल वे में कहे तो डेसिमल तो आना ही नहीं चाहिए, यहाँ ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, तो जो जीरो है जीरो को हटा देते हैं और यहाँ पर क्या कर देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं -212.3 किलो जूल पर मोल, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से जो 2 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फिर है आपको जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी दे देंगे कि एक्सेल दे देंगे और आपको कहेंगे कि नस्ट इक्वेशन के मदद से आप उसमें ईएमएफ कैलकुलेट कीजिए। जैसे मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन लास्ट एक दिखाता हूँ एक टाइप का, फिर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कैलकुलेट द ईएमएफ। मैं अभी क्वेश्चन भी लिख देता हूं इस पे, कह रहा है कैलकुलेट द ईएमएफ। ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, सेल दे रखा है आपको 2CR सॉलिड प्लस 3Fe 2 पॉजिटिव, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है 0.1 m, ये मोलर कंसंट्रेशन है। और ये बना देते हैं क्या, Cr2 प्लस, जिसका कंसंट्रेशन हो जाता है आपका 0.01 m प्लस Fe 3Fe सॉलिड, ये सेल दे रखा है आपको। ठीक है, ये आपको सेल दे रखा है क्वेश्चन में। और क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ई नोट जो है आपका किसका, Cr3 प्लस Cr3 प्लस Cr का वैल्यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, -0.74 वोल्ट। और Fe2 प्लस Fe का वैल्यू दे रखा है, Fe2 प्लस Fe का भी वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, -0.44 वोल्ट। ये दो वैल्यू। अब कह रहा है ईएमएफ निकालने के लिए, तो फिर से सुनिए, ईएमएफ मतलब होता है ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए, या ई नोट सेल। तो हम क्या करते हैं, यदि हम ई, पहले तो यहाँ में इस सवाल में क्या है कि ई नोट नहीं पता है, हमें ई नोट निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ई नोट सेल इक्वल टू क्या हो जाता है, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। अब देखो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो सीधी सी बात है कि कैथोड और एनोड पे बात हो रही है। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे रिडक्शन। तो राइट पे जो है हमारा रिडक्शन वाला होना चाहिए और लेफ्ट पे क्या होना चाहिए हमारा, ऑक्सीडेशन वाला, राइट। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस इक्वेशन को देखिए, Fe सॉलिड, तो ये क्या हो रहा है, इसका गेन कर रहा है, तो यानी रिडक्शन हो रहा है। और ये क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले Fe वाले वैल्यू को, यानी ये लिखना पड़ेगा आपको क्या, 0.44 वोल्ट माइनस 0.74 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था ही, -0.44 वोल्ट प्लस 0.74 वोल्ट, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.30 वोल्ट। ये आ गया वैल्यू हमारा। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया आपका, ई सेल निकाल दिया हमने। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हमने, ई सेल कैलकुलेट कर दिया। जब ई नोट सेल हमें मिल गया तो अब हमें क्या निकालना है, ईएमएफ निकालना है। अब ईएमएफ के लिए इक्वेशन क्या है भाई, तो अप्लाइंग नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा है, एक नॉर्मल सा फॉर्मूला पढ़ा है, यदि उस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा हमें। तो वो फॉर्मूला क्या है भाई, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल
माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। यही पढ़ा है आपने। प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। तो यही फॉर्मूला में इसमें ये सारी चीजें अप्लाई कर देंगे। अब देखिए हमें पता क्या है, कंसंट्रेशन पता है, ये C1 है, ये C2 है, जो भी है, और दूसरा हमें ये वैल्यू यहां से हमने ये निकाला, ये वैल्यू, यही तो हमें सवाल में यूज में लाना है। ठीक है, तो चलिए अब इन सभी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। n का वैल्यू भी हमें पता चल रहा है, यहाँ पर इस इक्वेशन को देखने से पता चल रहा है कि Cr से Cr3 प्लस यानी 3 इलेक्ट्रॉन, और चूंकि 2 Cr पार्टिसिपेट कर रहा है तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्वेशन में? 6। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे करें इसको। चलिए आगे करते हैं, यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गया भाई आपका? ई सेल इक्वल टू 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग। अब कह रहे हैं कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है भाई हमारा? प्रोडक्ट में Cr3 पॉजिटिव है और रिएक्टेंट में क्या है आपका? Fe2 पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा? Cr3 प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन, ये है। अब क्या है कि अभी हमने पढ़ा था ABC जो है रेज टू दी पावर होता है, तो Cr के पहले का कांस्टेंट 2 है तो इस पे स्क्वायर, Fe के पहले का कांस्टेंट क्या है? 3 है तो इस पे पावर क्यूब। आया समझ में? यही है मेन इस इक्वेशन में फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। क्लियर हो गया होगा? अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग। अब Cr का कंसंट्रेशन का वैल्यू, Cr वाला कंसंट्रेशन ये C2 है, तो C2 अपॉन C1 हो जाएगा। तो Cr का वैल्यू कितना है? 0.01 अपॉन 0.1 पे क्यूब पे स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसे अब आप आगे सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करते हैं हम इसे तो क्या आ जाता है हमें? देखिए कि ये स्क्वायर और ये क्यूब 3 पे, तो 0.1 यानी इसके लिए अगर हम ऐसे लिख दें नॉर्मल वे में जो सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के तरह, वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 0.01 इंटू 0.01 अपॉन 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब देखिए डेसिमल का प्लेस कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 1 2 3 होता क्या है कि इसका डेसिमल यदि हटाते हैं 1 2 और 3 तो क्या हो जाता है? 10 पे पावर 3, राइट। इसका डेसिमल हटाते हैं तो क्या हो जाता है? 10 पे पावर 4। ठीक है, 3 से ये गया 10, 1/10, यानी इस टोटल वैल्यू को अगर हम सॉल्व कर दिए तो क्या हो गया? 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 1/10। और भैया लॉग 1/10 का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? -1 होगा, क्योंकि लॉग 10 1 होता है, 10 पे पावर -1 माइनस हो जाएगा। तो अब आपका वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6। एक और माइनस आ जाएगा और फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? प्लस हो जाएगा। तो अगेन जो है आपका वैल्यू क्या हो गया जरा समझिए? 0.30 माइनस माइनस प्लस 0.0591। सम कर दीजिए इसमें। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है ये क्या हो गया हमारा। अब इस सवाल में जब पहले आप ई नोट निकालेंगे तो 1 नंबर वहां निकल जाएगा आपका, 3 नंबर का सवाल रहेगा। तो दूसरा जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो 2 नंबर, और लास्ट में जब ये कर देते हैं आप तो क्या हो जाएगा आपका?
359, यही आ गया आपका इस सवाल में आंसर। और ये होगा क्या भाई, वोल्ट। क्या हो जाएगा, वोल्ट। तो ये आ गया भाई ई सेल। और यही कैलकुलेट करने की बात हम कर रहे थे कि ई सेल कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड जितने भी प्रॉब्लम है गाइज आप एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इसमें यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ समझने में दिक्कत आए हम कोशिश करेंगे उसे रीसिंप्लीफाई करें। तो बहुत सारे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए आप इस पे। टिल देन बाय बाय एंड चाओ।